بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ او بھائی، لائٹنگ ذرا شو والی کریو، ایک دم دھانسو۔ اکلوتے بھانجے کی شادی ہے میرے۔ افضل نے گٹکا تھوک کر کمکمے والے کو ہلایا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ بہن کے گھر ڈیرا ڈال چکا تھا۔ بہنوئی اور اکلوتے بھانجے کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی وہ عادت ڈال چکا تھا۔ سارا دن موبائل میں گیم اور لغویات دیکھنا ہی اس کا کام کاج تھا۔ زین اور اس کا باپ سارا دن ماں کے بھائی کو گالیاں دے دے کر اپنے کام کرواتے تھے۔ خود بہن زین کی ماں انہیں گھر کے کام کے لیے دوڑائے رکھتی۔ آج زین کی مہندی تھی۔ نفیسہ خاتون نے کئی گھروں کے چائے سموسے ٹکارنے کے بعد سحر کو پسند کیا، جو بیٹے کی پسند کے عین مطابق تھی۔ گوری، دبلی پتلی، کم عمر، پڑھی لکھی۔ زین مردوں کے اس قبیلے سے تھا جن کے نزدیک عورت کا زیادہ پڑھنا لکھنا بیکار ہے، کرنی تو اس نے گھرداری ہے۔ وہ خود گلبہار میں 2 سینٹری شاپس کا مالک تھا، ڈبل منزلہ اپنا گھر، موٹر سائیکل، اکلوتا کھانے کمانے والا۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ دور قریب کے سارے رشتہ دار تقریباً جمع تھے، بس امی کی ننیالی بہن فریدہ اور ان کی بیٹی مالا ابھی تک حیدرآباد سے کراچی نہیں پہنچی تھی۔ وہ مستقل منہ بنائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا 10ویں کا سال تھا اور اماں اٹھا کے کراچی لے جا رہی تھی، محض شادی کے 2 تقریبات کے لیے۔ لال ململ کے دوپٹے سے اس نے اپنا گندمی چہرہ رگڑا۔ اے سی کوچ میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ابا نے کرائے کے پیسے دیے تھے، کرائے بھی ڈبل ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے 5 ایئر کے پیسے مانگے تو اماں نے کتنے رونے روئے تھے اس کے آگے، اور اب بانجے کی شادی کے فضول خرچے کے لیے فوراً پیسے نکلوا لیے ابا سے۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ کس کے باندھی گئی چوٹی کو اس نے تھوڑا ڈھیلا کر کے سر سیٹ سے ٹکایا۔ 2 سال پہلے وہ بلوغت پار کر چکی تھی۔ اس کی اٹھان اور صحت 15 سال کی نہیں لگتی تھی۔ دماغ اچھا تھا، سو پڑھائی کا اسے جنون تھا، جبکہ اماں کے بقول ہاں بڑی کلکٹر بنے گی نا پڑھ لکھ کے۔ وہ ہر آئے گئے کے آگے اس پہ طنز کرتی۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہو جاتے ہیں جسے نہیں جانتے، اور اس کی ماں بھی تعلیم سے نایافتہ تھی۔ افضل کب سے رکشہ لے کے اڈے پہ کھڑا تھا، مگر ماں بیٹی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ ویسے بھی بہت سالوں بعد فریدہ باجی سے مل رہا تھا، شکل کب کی بھول چکا تھا، بس کبھی کبھار بہن سے فون لے کر سلام دعا کر لیا کرتا تھا۔ وہ دور سے اس چھورے مامے کو پہچان گئی۔ بلا کی یادداشت تھی مالا کی۔ وہ رہے ماموں۔ اس نے ادھر ادھر ہونکوں کی طرح دیکھتی ہوئی ماں کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا۔ اے میرا بھائی، اماں والے ہانہ سی آگے بڑھی۔ سلام علیکم فریدہ باجی۔ اس نے للچائی ہوئی نظروں سے مالا کو دیکھا۔ وہ فوراً ماں کے پیچھے ہوئی اور دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اسکول ٹیچرز کی باتیں وہ تربیت کی طرح گرہ میں باندھ کے رکھتی تھی۔ ماں کو رونے اور تانوں سے فرصت ہی کہاں جو زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی۔ یہ تو اس کی تعلیم اور اساتذہ کرام کی باتیں اور مہربانی تھی کہ وہ اچھے برے کی تمیز جان رہی تھی۔ افضل کی گندمی نظریں مستقل اس کے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ جذبز ہوئی، اسے یہ سوچ ہی ڈرا رہی تھی کہ ابھی سے کچھ دن یہیں رہنا ہے۔ اڈے سے گھر پہنچنے تک دونوں ماں بیٹی پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، مگر گھر میں آتے ہی اے سی کی ٹھنڈک جسم و جاں کو راحت سی دے گئی۔ نفیسہ جوش سے فریدہ سے لپٹ گئی۔ مالا نے سامنے بیٹھے موبائل چلاتے دولہا زین کو دیکھا۔ لمبا قد، سانولا رنگ، جس پہ تراشی ہوئی داڑھی، مائیوں کے ملجگے کرتے میں ملبوس، وہ نخوت سے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ رہا تھا۔ مالا کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ایویں اماں راگ لاپتی رہتی ہیں، میرا زین، میرا زین۔ اس نے آہستہ سے سر جھٹکا۔ فریدہ تو بیٹی کے ساتھ آرام کر، شام میں ڈھلکی ہوگی، خوب ناچ گانا ہوگا، تو ابھی آرام کر لے۔ نفیسہ نے ان کی تھکان کا سوچ کے مشورہ دیا۔ وہ اکلوتے بیٹے کی شادی میں خوشی سے نہال تھی۔ رشتہ داروں اور محلے داروں سے گھر کو بھر رکھا تھا، خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ شادی کب ختم ہوگی خالہ؟ مالا نے یکدم نفیسہ سے پوچھا۔ آئے ہائے، اچھا بول، اللہ نہ کرے میرے ذہن کی شادی ختم ہو۔ اے فریدہ، تیری لڑکی کو تمیز ہی نہیں بولنے کی، اسکول کیا گھاس کھودنے جاتی ہے؟ نفیسہ نے ناگواری سے اسے گھورا۔ فریدہ نے شرمندہ ہو کے اسے کمر پہ ایک ہاتھ جڑا۔ یہ تیری پڑھائی ہے منحوس، ذلیل کروا دیا۔ وہ اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ ارے اماں، میرا مطلب… بس فریدہ نے اسے ہاتھ اٹھا کر بات مکمل کرنے سے روکا۔ جب تک ہم شادی میں ہیں اپنا منہ تو بند ہی رکھ، سمجھی؟ اسے اندازہ تک نہیں ہوا کہ آخر ایسا اس کے منہ سے کیا نکل گیا کہ یہ سب لوگ اس پہ چڑھ دوڑے۔ اس نے بیزاری سے ان کی جہالت کو نظر انداز کیا۔ ڈھولکی کے وقت بھی وہ منہ بنا کر ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ محلے اور رشتہ داروں کی لڑکیاں گلا پھاڑ پھاڑ کر، ہاتھ پیٹ پیٹ کر بالی ووڈ کے ہیجان انگیز گانے گا رہی تھی، اور خود ہی لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ نفیسہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بھونڈے انداز میں ناچ رہی تھی۔ اسے یکدم اس ماحول سے گھٹن سی ہوئی۔ اماں تو سب بھول بھال کے نفیسہ کے گھٹنوں سے لگی بیٹھی تھی۔ کھڑکیوں سے گھر کے لڑکے دانت پھاڑے اندر ہونے والی بے حیائی انجوائے کر رہے تھے۔ اس کو دکھ سا ہوا۔ اماں نے اسے کوئی کتاب ساتھ نہیں لانے دی۔ امتحانات سر پہ تھے اور وہ تیاری کے بجائے یہ سب کر رہی تھی۔ بیٹا، میں ادھر بیٹھ جاؤں؟
वो अपनी सोचों में गुम थी जब क्रीम कलर की कॉटन की साड़ी में मलबूस, आंखों पे चश्मा टिकाए एक नफीस और शाइस्ता खातून उससे मुखातिब हुई। उसने फौरन क्लाक दिखाया। सदफ खाला को लड़की पहली नज़र में कुछ अलग सी लगी थी। थैंक्स बेटा। वो भी इस तरह के नाच गाने के हंगामों से दूर थी। मैं इनकी मोहल्लेदार हूँ, कॉलेज में लेक्चरार हूँ। और आप बेटा? उन्होंने उसका तारुफ जानना चाहा। मैंने नफीसा खाला की भांजी हूँ, हैदराबाद से आई हूँ और मैट्रिक स्टूडेंट हूँ। मेरे पेपर्स होने वाले हैं। अम्मा मुझे ज़बरदस्ती शादी में ले आई हैं। कुछ मुंह बनाकर उसे अपना तारुफ दिया। अरे माशाल्लाह बेटा, अल्लाह आपको कामयाब करे। मेरा बेटा बिलाल भी मैट्रिक में है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। आपने क्या सब्जेक्ट्स रखे हैं? वो इसमें वो इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी। माला को खुशी हुई कि उसकी ज़ात और उसकी तालीम भी किसी के लिए मायने रखती है। उसे भी सदफ खान अच्छी लगी। वो नहीं जानती थी कि इस औरत की ज़ात से इसकी ज़ात को कितना फ़ायदा पहुंचने वाला है। वो उसकी कितनी बड़ी खैर ख्वाह साबित होने वाली है। शादी के सारे हंगामे अफजल मामा की गंदी हरीस नज़रों, नफीसा खाला के तंज और जैन भाई की ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों पे ताने कसने में गुजर गई। इसकी तालीम का शौक जैसे सबसे बड़ा अजाब बन गया था। वो किन कम इल्मों में आपनसी थी। उसे इन सब की सोच पे सिर्फ अफसोस होता था। शादी में बदतमीजी और जहालत के मुजाहरे देख देख के उसका तो दिल ही खराब हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके अम्मा को जाने का ख्याल आया, वरना तो वो शायद जैन और उसकी दुल्हन के साथ हनीमून तक घूम आती। माला खुशी खुशी सामान बांध रही थी जब उसके कानों में नफीसा खाला की आवाज़ पड़ी। सोच लेना, शहजादी बना के रखेगा वो इसे, ठाठ से रहेगी यहाँ। वैसे भी ये पढ़ाई के चक्कर शक्कर में ना लगाओ जवान लड़की को, घर का करो बस। अब इसे उम्र से कुछ नहीं होता, शादी के बाद अफजल के साथ की ही लगेगी। वैसे भी कौन सा सगा मामू है इसका। उसके हाथ अफजल के नाम पे सुन हुए। ये क्या चल रहा है इधर? उसका कम सुन दिल बुरी तरह सहमा। उसे नफीसा की सोच पे ज्यादा हैरत नहीं हुई। उनकी अपनी सगी बेटी भी होती तो उनके नज़दीक शादी का मयार घर और पैसा ही होता। ऐसे लोगों के लिए किरदार और तालीम मायने नहीं रखती। उसे दुख अपनी माँ की खामोशी पे हुआ, जो ललचाई सी ममनून सी नफीसा के आगे दोहरी हो रही थी। अधखुले दरवाजे से उसने दोनों को कहर आलूद नज़रों से देखकर वापस सामान की पैकिंग की। चीज़ें और कपड़े शॉपरों में भरते हुए वो मुस्तकिल बहते आंसुओं को एक हाथ से साफ किए जा रही थी। बेसकूनी में उदासी का समंदर मिलकर दिल मेरा कैसे बना, आप नहीं समझेंगे। अड्डे पर जबरदस्ती अफजल ने उसके हाथ में चीज का शापर थमाया। उसने मां की कोहनी मारने पर बेदिली से अपने हाथ में ले लिया। शुक्रिया मामू। उसने दांत चबाकर अफजल को देखा। वो इसी तरह बेगैरती के साथ हरीस नजरों से उसके जिस्म का मुआयना करता रहा। फिर आना शहजादी, बड़ी मोहब्बत से अफजल ने उसे देखते हुए कहा। वो दांत पीस कर बस के अंदर देखने लगी। गाड़ी चली तो उसकी आंखों से अश्कों की नहर भी चल पड़ी। माँ बेटी से बेखबर सीट से सर टिका के सोने की तैयारी में लग गई थी। उसे कभी कभी शक होता क्या वो उसकी सगी माँ ही है। उसे यकदम सदफ खान याद आई। कितने खुशकिस्मत होंगे उनके बच्चे। हाँ, एक रश्क भरी होक उसके सीने से निकल गई। क्या बात है मामा, आप अकेले बैठे बैठे क्यों मुस्कुराए जा रही हैं? किन सोचों में गुम हैं? बिलाल ने अपने नोट्स टेबल पर रखकर सोफे पर बैठी माँ को मुखातिब किया। कुछ नहीं, एक बच्ची का सोच रही थी, उन्होंने मोहब्बत से बेटे को देखते हुए जवाब दिया। अरे भाई, आपके अपने 2 बच्चे हैं, उनका भी सोचिए बेगम। उनके शौहर खुश दिली से मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। बिलाल ने बाप की बात पर हंसकर माँ को देखा। देख लें बाबा, इन्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। वलिया भी पीछे से टुकड़ा लगाती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। अरे भाई, तुम लोगों को सोच कर इस बच्ची का ख्याल आया। शुक्र अदा करो कि तुम्हें मेरी जैसी माँ मैसर आई है। सदफ खान के लहजे से दुख छिलकने लगा। उन्हें शिद्दत के साथ वो बच्ची माला याद आई, जिसे वो जैन की शादी में मिली थी। कौन बच्ची? तीनों ने बेजा वक्त पूछा। एक बच्ची है माला, जो मोहल्ले में रहती नफीसा खातून, उनकी हैदराबाद वाली कजन की बेटी है। अभी जैन की शादी में ही उससे मुलाकात हुई। आम बच्चियों से काफी मुख्तलिफ लगी मुझे वो। उसकी आंखों में बहुत जहानत है माशाल्लाह से। वो ऐसा हीरा जिसे तराश की जरूरत है। सदफ खान की नजरों में खलूस की चमक थी, जिसे तीनों ने महसूस किया। एक तो आपके अंदर की टीचर और ईदी से मैं बड़ा तंग हूँ। उनके शौहर ने बच्चों को आंख मार के शरारत से कहा। मम्मा, मेरी आंखों पे कभी गौर नहीं किया? वलिया ने मुंह बसोरा तो बिलाल बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम्हारी आंखों पे जो ये चश्मा है, पहले इसे तो हटाओ। उसने मोहब्बत से बहन के सर पर चपत लगाई। वो गो कि छोटा था, मगर उसमें बड़े भाइयों जैसी बर्दबादी थी। जबकि वलिया 2 साल बड़ी होने के बावजूद बच्चों की तरह हरकतें करती फिरती थी। तुम लोग तो बस हर बात मजाक में उड़ा दिया करो। वो तीनों को गैर संजीदा देखकर बुरा मना गई। अरे अरे, आप हुक्म करें, क्या करना है बस बताएं। वो तीनों शरारत से उनके आगे ताजीमन खड़े हो गए। काश हम उसके लिए कुछ कर पाते। वो ठंडी सांस भर के रह गई। उन्हें कीचड़ के कमल का दुख खा रहा था।
घर पहुंचते वो सारे सफर की थकन और सोचों से चूर, बेचारी सो गई। रात को फरीदा ने मौका लगते ही शौहर को नफीसा का इरादा बता दिया, जिसे सुनते ही गुलाम पे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। इतना बड़ा बोझ बैठे बैठे सरक गया। इकलौती लड़की, कराची में शादी, रुपया पैसा और क्या चाहिए। कह रही थी साल भर में आएंगी और निकाह करवा के ले जाएंगी, बस इसको स्कूल से उठवाकर थोड़ा घरदारी सिखा दें। फरीदा ने शौहर को खुश देखकर मजीद बताया, हाँ हाँ तू वही कर जो बाजी नफीसा ने कहा है। इसको अपनी ज़बान में समझा दे, उन लोगों के आगे ज़बान ना खोले कभी, खिदमतें करे उनकी। गुलाम एहसान मंदी के एहसास के तहत शदीद जज्बाती हुआ। वो अपनी ज़िंदगी के होने वाले सियाह फैसलों से बेखबर ऊंचे ख्वाबों की सैर में थी, ये जाने बगैर कि सुबह उठते ही वो मुंह के बल गिरा दी जाएगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं, चुप करके घर बैठ चल। सुबह सुबह उसे यूनिफॉर्म में देखकर बाप ने दो हत्थड़ लगाए। वो सहन में गिरी पड़ी थी कि माँ किचन से निकल कर आई, तेरा स्कूल वकूल बंद आए से मेरे साथ बावर्ची खाना देख। फरीदा ने उसे बाजू से उठाकर सीधा किया। बाजू की चोट भूल कर वो स्कूल बंद होने के गम में रो पड़ी। अम्मा मैंने स्कूल जाना है, मेरे एग्जाम्स हैं, मेरी मेहनत है अब्बा। वो दोनों की तरफ रो रो के फरियादी हुई। बड़ी तो सदर लगेगी मुल्क की है। गुलाम एक हाथ और उसे लगा के हो रहा, चल अंदर मर। उसने उसका बस्ता खींचा। वो बैग को मजबूती से दबोच कर अंदर भागी। वो सारा दिन भूख हड़ताल पे रही। रो रो के उसके हलक में कांटे पड़ चुके थे। जिन वालदैन को उसकी तालीम की, उसके ख्वाबों की फिक्र न थी, उसके खाने पीने की फिक्र क्या करते। दोनों आराम से सो चुके थे। वो सेहन में अकेली बैठी खाली आंखों से तारों भरे आसमान को देख रही थी। कम उम्र में पढ़ने वाली इब्तदादें यूं भी सोचने की सलाहियत पैदा नहीं होने देती थी। बस दुख और यास के घेरे बच्चों को घेर लेते हैं। वो भी बच्ची थी, महज 15 साल की। वो अपने दिफा में सिर्फ आंसू बहा सकती थी, और वो सुबह से बहा रही थी। अम्मा तू जो कहेगी मैं वो करूंगी, बस मुझे पर्चे देने दे 10वीं के। सुबह होते ही उसने अपनी रातों के ख्वाबों की कुर्बानी दी। इतनी सी उम्र में कैसे पुख्ता फैसले करवा रहे थे उसके माँ बाप। मेरा दिमाग ना खा, कुछ खा के बावर्ची खाना साफ कर, और घर के बथेरे काम हैं वो कर चल। माँ ने उसकी बात ही अनसुनी कर दी। वो तड़प के बाप के कदमों में जा बैठी। अब्बा अब्बा मान जा, मैं आगे जिद नहीं करूंगी। वो बिलकने लगी। दोनों ने कड़े तेवरों से उसे देखा। ठीक है दे ले पर्चे, मगर साथ साथ अब घर देख और बस माँ के साथ शादी की तैयारी में लग। बाप ने बेजारी से उसे दूर किया। वो खुशी के मारे जल्दी जल्दी मुंह नाजुक नाजुक हाथों से साफ करके किचन की तरफ भागी। बहू फारिग हो जाए तो हैदराबाद जाके ले आएंगे निकाह पढ़वा के उसे, तब तक सब्र से बैठ तू। नफीसा ने भाई को तसल्ली दी, जिसके मुंह से राल टपक रही थी। वो तसव्वुर में उस गली को मसल चुका था, और अब कुछ महीनों बाद हकीकत में वो अपने सारे अरमान निकालने वाला था। जैन ने राल टिपकाते मामा को देखकर भूंडी से मुस्कुराहट चेहरे पे सजाई। सोच ले मामे, कहीं रोटी की जगह तुझे किताब न थमा दे वो छोटी मास्टरनी। अपने मजाक पे वो खुद ही जी खोल के हंसा। माँ ने भी बेटे का भरपूर साथ दिया। आग लगा दूंगा उसकी सारी किताबों को, आने तो दे, अफजल भड़क के बोला, और मूंछों को ताव देता बाहर निकला। दोनों माँ बेटे देर तक हंसते रहे। किसी का नाजुक वजूद, मासूम ख्वाब उनके लिए मजाक था। एक हाथ स्लेब पर मार के बर्तन उसने सिंक में डाले, और फिर से पेन थाम के वो फार्मूला हल किया। और आखिर वो मुश्किल सवाल हल हो गया। शुक्र, उसने सुख का सांस भरा। सिंक के सामने वाली खिड़की में 5 अटका के वो बर्तन धोने के साथ साथ MCQs पे भी नजर डाले जा रही थी। कल क्लास में टेस्ट था, और फिर प्रीलिम्स का आगाज होना था। अब सारा घर उस पे छोड़ के बाजारों के चक्कर काटती फिरती। वो स्कूल से आती घर के कामों में लग जाती। शौक पूरे करने के लिए उसे बचपन वाला कबूल था। उसने बावर्ची खाना बंद करके सेहन की झाड़ू लगाना शुरू की। उसने सफाई के चक्कर में अभी तक खाना नहीं खाया था। माँ बाप को कोई शिकायत ना हो, इसलिए वो घर के कामों को तेजी से अंजाम दे रही थी। झाड़ू के बाद पानी का छिड़काव करके वो थक के चारपाई पे ढह गई। पेट से भूख के मारे आवाजें आ रही थी, मगर उसमें उठ के खाना खा लेने की हिम्मत न थी। शाम उतरने ही वाली थी। 4:30 होने को आ रहे थे। बाप काम से आके अंदर कमरे में पड़ा सो रहा था। धूप दीवारों से नीचे उतर रही थी। परिंदों की आसमानों पर परवाज जारी थी। तहत निगाह नीला आसमान था। ये परिंदे नहीं हैं उड़ते फिरते हुए, ये मेरे ख्वाब हैं बिखरते हुए। कभी किसी रिसाले में पड़ा हुआ शेर उसे याद आया। आंखें किनारों की तरफ से भीगने लगी। उसकी सिसकी से पूरा नाजुक वजूद हिल सा गया। 5 बजे के करीब फरीदा घर में दाखिल हुई तो वो सामने पलंग पे भूख से बेहाल सी सो चुकी थी। उसने घर और बर्ची खाने का जायजा लेकर सुख का सांस लिया। सब काम वो करके सोई थी। वो बेटी पे एक नजर डालकर सारे थैले अंदर लेकर चली गई। अभी प्रेगनेंसी का 6वां महीना ही था कि जैन की बीवी की तबीयत किसी अंदरूनी पेचीदगी की वजह से शदीद खराब हो गई। नफीसा खातून ने तो फौरन बीमार बहू को मेके रवाना कर दिया। बाप के घर से बीमार आई थी। ए भैया, हमने तो बड़ा ख्याल किया, अब वो जाने उनकी बेटी जाने। मोहल्ले भर को यही बताया गया कि सहर शुरू से बीमार है। जैन को भी माँ ने यही पट्टी पढ़ाई कि वो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। अपना घर है उसका, जब सही होगी तो आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।
दिन तेजी से गुजर रहे थे। अम्मा अब्बा उसकी शादी की तैयारी में लगे थे और वो पेपर्स की तैयारी में। मैट्रिक तो वो लाजमी करेगी, ये उसका खुद से अहद था। आगे शायद अफजल उसे प्राइवेट पढ़वा दे, इतनी खाम ख्याली उसने पाल ही ली थी। उसने अपने कागजात की पूरी फाइल भी तैयार कर ली। उसे कराची ले जाने का इरादा रखती थी, शायद उसका तालीम का शौक देखकर वो लोग मान जाएं। उसे अजीब सी हसरत ने आ घिरा। अफजल की शक्ल ज़हन में आते ही उसका नाजुक दिल काम किया, जैसे कोई भेड़िया उसके करीब तेज तेज सांस ले रहा हो। अम्मा, मैं जा रही हूँ, उसने एक आस से माँ को आवाज़ लगाई। शायद दरवाजे तक आए पर्चा अच्छा होने की दुआ दे। दोनों माँ बाप सुनी अनसुनी करके शादी की जोड़ तोड़ में लगे हुए थे। हर पर्चे में उसके साथ यही हुआ। आज बोर्ड का आखिरी पेपर था, मगर जिंदगी में कभी उसके ना खत्म होने वाले इम्तिहानात का सिलसिला शुरू होने वाला था। उन्हें सुबह फोन पे इत्तला मिली थी कि सहर बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें फौरन नौमौलूद बच्चे को उसकी माँ से छीना। अरे हमने तो सही भेजा था उसे, तुम लोगों से अपनी बेटी ना बचाई गई। उन्होंने हवेला दमदार करने के लिए खत्तर भी सीने पे मारा। जैन एक कोने में खड़ा खुशबकी नजरों से अपने ससुर को देख रहा था, जो जवान बेटी के गम में पिलर से लगे सिसक रहे थे। अस्पतालों के चक्कर काट काट के वो आधे हो गए थे। नन्हा बच्चा दादी की सख्त गोद में बिलक उठा। जैन ने बाप का फर्ज अदा करते हुए बच्चे को गोद में लिया। तदफीन में आ जाऊंगा, जा रहा हूँ अपने औलाद को लेकर। सास ससुर को हक्का बक्का छोड़ छाड़ वो बेटे को गोद में लिए माँ के साथ बाहर निकल आया, मरहुमा बीवी पे दूसरी नजर डाले बगैर। बहुत से लोग उसके सर पे खड़े थे। वो घर के सेहन में बीचों बीच लेटी थी, मगर जिस्म पे यूनिफॉर्म की जगह फटी हुई सी चादर थी। उसने आंखों को पूरी तरह खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। रोती पीटती सी आवाजें बयान करते हुए जुमले उसके कानों तक पहुंच रहे थे, मगर दिमागी पैगाम रसानी मफलूज थी। मैं कहती थी, मत पढ़ाई वढ़ाई करवा इसकी, गुलाम ले अब बैठी रहेगी सारी जिंदगी, मूंग दलेगी सीने पे। हाय, अरे काश मार ही देते इसे, जिंदा क्यों छोड़ा। बाप रोते हुए उसे कोस रहा था। सुना है पर्चे से वापसी पे उठाया था। 2 आदमी थे। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोगों ने उसे हमदर्दी जताई। वो तो मेरी नजर पड़ी तो पहचाना कि ये गुलाम की लड़की है। बुरी हालत कर दी बेचारी की। अस्पताल वाले नहीं लेते, कहते हैं पुलिस केस है। इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय, मर जाती तो अच्छा था, अब कौन भी आएगा। माँ ने फिर बैन डाले। वो चित लेटी हुई थी, जख्मों से हनोज खून रस रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसे सब जाते नजर आ रहे थे। सेहन खाली होना शुरू हुआ। माँ बाप यूं ही कोनों में बैठे उसे कोस रहे थे। उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो गईं। वो ज्यादती का शिकार होने वाली पहली बच्ची नहीं थी, मगर इस हादसे में बचने वाली शायद पहली थी। तुमने देखा है निकलता हुआ सूरज लोगों, तुमने कुछ ख्वाब सुहाने नहीं मरते देखे। शहर के सोम की बिरयानी डिकारने के बाद वो सब लाउंज में जमा थे। अफजल और जैन दोनों को अपनी दूसरी शादी की फिक्र लाहक थी। नफीसा खातून में दम न था कि बच्चे का गोमौत करवाती। उन्हें जल्द अज जल्द कोई यतीम यसर जैन के लिए लानी थी, जो सब काम देख ले और उफ ना करे, जिसके आगे पीछे कोई सपोर्टर ना हो। वो हमेशा अपने से निचले सीधे सादे लोगों में जाकर लड़की पसंद करती, ताकि उनका टहका कायम रहे, बेटा मुट्ठी में रहे। कुछ माएँ बेटों का घर बसाने के लिए नहीं, उजाड़ने के लिए पराई बेटियां लाती हैं। नफीसा खातून भी औरतों की उसी खेप से थी। उसे जिंदा दरगोर हुए तीसरा रोज था। माँ बाप उसे सारा दिन लान तान करते, जैसे वो अपनी मर्जी से खुद को उजाड़ आई हो। मोहल्ले की औरतें रोज हमदर्दी की आड़ में कलेजा चीरने आ जाती। दीवार गिर जाए तो लोग यूं ही आने जाने के रास्ते बना लेते हैं। वो भी रास्ता हो गई थी। हर कोई उस पर अपने हिसाब से कदम रख कर चल रहा था। हल्के कदम, भारी कदम, रोनते हुए कदम। वो साकित लबों और आंखों से जिंदगी की सच्चाई से इस हकीकत को जहन में दुहराती रही, जो उस पर बड़े भयानक अंदाज में खुली थी, बहुत ही बेईमाना तरीके से। उसकी आंखों के आगे उसके हसीन ख्वाब खौफनाक सायों की तरह लहराते रहे। माँ बाप की घुड़कियां जारी रहती और वो किसी न किसी कोने में गुमसुम बुत बनी बैठी रहती। लौटने वाले ये नहीं देखते कि कोई कितना सफ़र करके यहाँ तक आया था। मैं सोच रही हूँ फरीदा को फ़ोन मिलाऊं, अफजल और जैन को साथ ही निपटा देते हैं। पहले ही बहुत पैसे उठ चुके, अब कोई धूम धड़क्का नहीं, बस मोहल्ले वाले पहले ही बातें बना रहे हैं जैसे हमने मारा बहू को। नफीसा अपने शौहर के आगे फट पड़ी। ये ताज़ियत करने आती हैं और कुरीद कुरीद के जाती हैं। उनके शौहर भी भरे बैठे थे। बस एक लड़की देख ली है, आगे पीछे कोई नहीं। खाला ने पाला है। अच्छा है दोनों आ जाएंगी तो मेरा बोझ कम होगा। वो आराम से पाँव पसार के बैठी हुई थी कि अफजल तनफन करता हुआ अंदर आया। मैंने नहीं करनी फरीदा बाजी के घर शादी, और उसकी लड़की के साथ तो ज्यादती हो गई है। मेरा जाने वाला भी बता के गया है, वो चालाक औरत हमसे छुपा रही है। हाय। नफीसा और उनके शौहर एक साथ उछले। फरीदा चुपचाप नफीसा खातून के ताने गालियां सुन रही थी। गुलाम सर पकड़ के बैठा था। वो खामोशी से खाली आंखों से माँ का गम गुस्सा देख रही थी। महसूसात कहीं जा सोए थे। वो बहुत बाहिम्मत और बहादुर लड़की थी।
اس نے مویلا نہیں کیا، بس چپ چاپ اپنے وجود کی قبر میں جا سوئی تھی۔ فون پہ اس کا مستقبل طے ہو رہا تھا، جو یقیناً خوش آئند نہیں ہوگا۔ اسے اندازہ تھا وہ لوگ حیدرآباد پہنچ چکے تھے۔ غلام نے صحن میں ایک چھوٹا سا شامیانہ کھینچ دیا، 5-6 کرسیاں لگوا دی، قریبی پکوان والے سے چھوٹی سی دیگ تیار کروا لی۔ نفیسہ ان کے شوہر اور دوسری بار دلہا بنا ذہن ماتھے پہ لیے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مولوی صاحب ایجاب و قبول کے مراحل طے کروا رہے تھے۔ یہ ایک ناجائز اور زبردستی کی شادی تھی۔ عمر اور سوچ کا تفاوت، مالا کا تو شناختی کارڈ تک نہ بنا تھا۔ بچی یہیں سائن کر دو۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کے اچھلی۔ اسے ان کا چھونا بہت برا لگا۔ وہ سمٹ کے دور ہوئی۔ ماں نے آگے بڑھ کے اسے قلم تھمایا۔ کتنے چاؤ سے وہ اسکول کے یونیفارم پہ سائن کرتی تھی۔ اسے یاد آیا، گلے میں گولے اٹکنے لگے، اسے سب دھندلا لگنے لگا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس چھوٹی سی لال غرارے ملبوس گڑیا نے سائن کیے۔ اس پہ غشی تاری ہو رہی تھی۔ آگے کی ہولناکیوں اور رویوں سے تھکان سے چور کر رہے تھے۔ اس نے دن میں آخری نوالا کب کھایا تھا، کسی کو ہوش نہ تھا۔ ابھی ایک ہاتھ سے سنبھلی نہ تھی کہ ماں باپ نئے امتحان میں جھونک رہے تھے۔ اس نے حسرت سے ماں کو دیکھا، شاید گلے لگائے۔ وہ اسے چھوڑ کے مولوی کے پیچھے باہر کو لپکی۔ بڑھ رہا ہے درد کا دورانیہ، یہ یقیناً چیخ پہ گھسائے گا۔ گاڑی کراچی کی جانب رواں دواں تھی۔ شام راستوں میں آ کھڑی تھی۔ باپ اور زین آگے بیٹھے تھے۔ یہ کرائے کی گاڑی تھی۔ نفیسہ پیچھے اسے ساتھ لیے مسلسل گالیوں اور کڑوی کسیلی باتوں سے نواز رہی تھی۔ وہ لب بستہ کھڑکی سے پار پیچھے چھوٹتے مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ نئی زندگی، نیا شہر، نئے لوگ، نئے امتحانات، پھٹا ہوا دل، لوٹی ہوئی عزت، مسخ ہوتی پہچان، شکستہ اعصاب اور وہ اکیلی۔ 8 بجے وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ اعصاب شکن مراحل میں وہ داخل ہو چکی تھی۔ اسے اپنی زبان میں سب سمجھا دے زین، میں سونے چلی۔ نفیسہ اسے درندے کے آگے ڈال کر اپنے شوہر کے ہمراہ چل پڑی۔ وہ جو بیڈ کے قریب منتظر کھڑی تھی، دروازے کی دھاڑ پہ سہم کے نیچے بیٹھی۔ زین کمرہ بند کر کے اس کی جانب آیا۔ اس نے خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ ایک بات سن لے میری، اور سمجھ لے، اب تو کوئی بچی نہیں رہی، سمجھی؟ پکی ہو گئی ہے پوری۔ اماں سے زبان چلائی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، باہر قدم بھی نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اور یہ جو دوستانی بنی پھرتی ہے نا، آگ لگا دوں گا تجھے تیری کتابوں سمیت، سمجھی؟ زین نے اس کا نازک بازو دبوچ کر اس کا چھوٹا سا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے اس طرح بے بس خوف زدہ دیکھ کر اس کی مردانگی کو کچھ آرام آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کی اور مالا کو مزید اندھیروں میں دھکیلا۔ صدف خان پہ تو آسمان ٹوٹا تھا۔ انہیں بھی محلے کی عورت کے ذریعے پتہ چلا کہ زین کی شادی ایک بہت کم عمر لڑکی سے ہوئی ہے جو حیدرآباد سے ہے۔ ان کے سامنے مالا کا نازک سا وجود آ گیا۔ کہاں وہ بچی، کہاں یہ درندہ صرف لوگ۔ مالا کا دکھ آنسو بن کے ان کے قلب پر گر رہا تھا۔ اس نے سارے برتن دھو کے ریک میں لگائے، پھر لاؤنج کا پوچھا مار کے اس نے دوبارہ کچن کا رخ کیا، جہاں اس کا ناشتہ تقریباً ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ابھی کمرے کی صفائی باقی تھی۔ زین سویا ہوا تھا، جبکہ نفیسہ نے اسے صبح ہی صبح گھر کے کاموں میں جگا دیا تھا۔ خود کو وہ پوتے کو لے کر کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ابھی تک افضل سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ کھانے کی ٹیبل پہ بازار کے پراٹھے، انڈے موجود تھے۔ چائے رکھے رکھے ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس وقت غنیمت تھی۔ وہ کل سے بھوکی تھی۔ اس نے نوالے توڑ توڑ کے کھانا شروع کیے۔ چائے کے ساتھ نمکین آنسو بھی حلق میں جاتے رہے۔ ایک درد ہے جو سہ رہا ہوں میرے خدایا، ایک بات ہے جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ وہ حیرت سے اپنی گود میں ڈالے گئے ننھے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ گل گوتھنا، گلابی سا وجود اس کی نرم آغوش میں آ کر کلکاریاں مارتا ہوا۔ یہ تیرا اور زین کا بیٹا ہے، اسے بھی تو نہیں پالنا ہے، سنبھالنا ہے، سمجھی؟ نفیسہ نے اس کے نازک کندھوں پہ مزید ذمہ داریوں کا اضافہ کیا۔ اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا اور اپنے نئے امتحان کو، جو اب اس کی ہی گود میں سو چکا تھا۔ بلال نے گمسم بیٹھی ماں کو دیکھ کر ان کا شانہ ہلایا۔ مما، وہ چیئر ان کے قریب کر کے بیٹھا۔ آخر آپ کیوں اس لڑکی کا اتنا سوچ رہی ہیں؟ یہ اس کی زندگی، اس کے ماں باپ کا فیصلہ ہے، اس کے نصیب کا معاملہ ہے۔ خود کو دکھی مت کریں آپ پلیز۔ انہیں سمجھاتے سمجھاتے ملتجی سا ہوا۔ وہ اس وقت کوئی 16 سال کا لڑکا نہیں، ایک بردبار شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بیٹے کے سمجھانے پہ دھیمے سے مسکرا دی۔ انہیں اندازہ تھا جو کچھ مالا کے لیے کرنا چاہتی ہیں ناممکن ہے۔ اپنے ذہن میں آتے طوفانی انقلابی خیالات کو انہوں نے جھٹکا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تو اپنے کالج کے ایڈمیشن کی تیاری کرو، میں ڈنر لگوا دیتی ہوں۔ انہوں نے بیٹے کو اپنی طرف سے مطمئن کیا۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر تک مالا کو سوچتا رہا۔ اس محلے میں سب سے بدنام اور برا سمجھا جانے والا گھر زین لوگوں کا ہی تھا۔ وہ صرف پیسوں کے اعتبار سے آگے تھے، باقی اخلاقیات میں سب سے پیچھے۔ اس غائبانہ لڑکی سے اسے بھی ہمدردی محسوس ہوئی۔ یہ ہمدردی آگے چل کر محبت کا رنگ لے گی، اسے گمان تک نہ تھا۔ وہ رات کے برتن سمیٹ رہی تھی، جبھی اس کے پیچھے آہٹ ہوئی۔ وہ ڈر کے دور ہٹی۔ افضل بالکل اس کی پشت سے لگا تھا، ہونٹوں پہ خبیث سی مسکراہٹ لیے وہ انہی غلیظ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔
वो गुलाबी रेशमी सूट में मलबूस थी। नफीसा के कहने पर उसने भर की चूड़ियां पहन रखी थी, मेकअप भी किया था ताकि मोहल्ले से आने वालियां ये न समझे कि वो बहुत कम उम्र है या खुश नहीं इस घर में। आपको कुछ चाहिए मामू? उसने झिझकते हुए पूछा। उसका दम हलक में अटक रहा था। वो उसकी बदनीयती से वाकिफ थी। उसने दिली दिल में गैबी मदद मांगी। तो बड़ी प्यारी लग रही है। उसने निहायत ऊंचे अंदाज में उसकी तारीफ की। वो सहम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। कोई कभी भी आ सकता था और मलबा उसी पे गिरना था, वो जानती थी। ओ माला! कमरे से जैन के चीखने की आवाज आई तो वो जान बचा के भागी। वो जिस वक्त अंदर आई उसकी सांस तेज चढ़ी हुई थी। क्या हलजूत क्या आ रही है? जैन ने उसे जलील किया। इसे चुप करवा और सुला जल्दी। उसने नन्हे आसिम को उसे थमाया और खुद सोने लेट गया। उसने घबरा के बच्चे को थामा और थपकना शुरू किया। वो सुबह की जागी हुई सारा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती। कभी कभी तो बच्चे को गोद में लिए ही आधे काम निपटाती। रात में उसे सुलाना सबसे मुश्किल था। ये आसिम के खेलने और जागने का वक्त होता, जबकि वो थकन से शल हो रही होती। जमैया रोकते हुए उसने झुंझुना उसके पास हिलाया। वो हाथ पांव मार के खिलखिलाने लगा। उसके नन्हे से वजूद से रोशनी निकलती थी जो माला के अंधेरे कम करती, जैसे उसका वाहिद दमसाज था। उसने बेख्तियार उसे गोद में भर के चूमा। आंसू तवातर से बह रहे थे। वो माँ बाप के होते हुए मोहब्बत, तवज्जो और तोहफुज से महरूम थी, और ये बच्चा भी। दोनों को दुख साझा था। मैं इसे माँ का प्यार दूंगी, अच्छी तरबियत और इखलाक दूंगी, इसे खूब पढ़ाऊंगी। यकदम उसके अंदर ममता के जज्बात उभरे। एक नए अज़म और वलवले के साथ उसने आसिम को थपकना शुरू किया, जो थोड़ा बहुत नींद में जा चुका था। बेगम, आपका वहां जाना फजूल है। वो जाहिल लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। मोहल्ले में तमाशा होगा, रहने दे यार। आफाक खान ने जज्बात में निकलती हुई बेगम को रोकने की कोशिश की। आप हट जाएं। मैं उस बच्ची को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। ये लोग उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इन लोगों को मेरी बात माननी होगी, वरना हम पुलिस में चले जाएंगे बस। वो शदीद बिफरी हुई थी। बच्चे दोनों पढ़ने गए थे। वो कॉलेज से आकर भी शदीद बेचैन थी। कई दिनों का उबाल आज फिर बाहर आ गया था। बेवकूफ़ी की बातें मत करें। उसका अल्लाह मालिक है, हम क्यों पराई आग में कूदें। वो शदीद नाराज हुए। हमारे आगे भी बेटी आफाक, खुद सोचें। आज किसी बच्ची के साथ देंगे तो कल को हमारे बच्चों के आगे अच्छा अच्छा आएगा। उन्होंने इखलाकी पैराई में आकर शौहर को कायल करने की कोशिश की। ये सब हमारी वली के साथ हो अगर। उन्होंने शौहर का कलेजा चीरा। वो बाज अमीर आदमी थे, बीवी के आगे नातिम हो गए। ये उनके हार मानने का ऐलान था। मगर वो जाहिल लोगों के जंगल से इस बच्ची को कैसे बचाएं, ये सवाल पहाड़ की तरह उनके सामने खड़ा था। सदफ खान अपनी बात पे अटल कायम थी। 10 घर छोड़ के सेहन साफ करती माला बेखबर थी कि तकदीर पलटने वाली है। नफीसा और उनके शौहर मुंह फाड़े अपने घर में। सदफ, उनके शौहर और सादा वर्दी में पुलिस एहलकार को देख रहे थे, जिन्होंने आती माला को बाहर लाने का मुतालबा किया था। सदफ बहन, ये सब क्या है? कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो हम गरीबों से? नफीसा की अदाकारी अरूज पे थी। वो मजलूम बनने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। ये तो आप मुझे बताएं, क्या है ये सब? एक कम उम्र मासूम जान पे जुल्म करते शर्म नहीं आई आपको? वो उन पे गुस्से से धाड़ी। आपके बेटे और शौहर को अब जेल की हवा खाने की जरूरत है। बच्ची की रजामंदी के बगैर उसका निकाह और उस पर घरेलू तशद्दुद के खिलाफ FIR कटी है आपके बेटे और शौहर के नाम। महल्लेदारी है, तभी हम बाकायदा पुलिस नहीं लाए, वरना निकलता भी आपकी इज्जत का जनाजा। आफाक खान ने धमकी अमेज लहजे में जतलाया। बुलाओ बच्ची को बाहर। सुहेल अहमद अफसरों वाले अंदाज में दाड़े। वो आफाक के फर्स्ट कजन थे। सदफ खान का घराना मोहल्ले के मुअज्जज तरीन घरानों में शुमार होता था। नफीसा और उनके शौहर को तो लेने के देने पड़ गए। मैं लाती हूँ उसे। नफीसा की गुग्गी बंदी। वो तेजी से माला के कमरे की तरफ भागी। वो जो अभी सारे काम निपटा के आसिम को लेके थोड़ा सोने के गर्ज से लेटी थी, धड़ धड़ बजते दरवाजे की आवाज से हड़बड़ा के उठी। उसने जल्दी से दुपट्टा ठीक करके दरवाजा खोला। मुबादा कहीं जैन न हो, देर होती तो उसे कच्चा चबा जाता। माला, वो बाहर पुलिस है, तू कुछ ना कहिए उनसे, तुझे अल्लाह का वास्ता। तू बोल देना तेरी मर्जी है, तू यहाँ खुश है। वो फूली सांस के साथ बेरब्त हो रही थी। माला को कुछ समझ नहीं आया। जल्दी करो। बाहर से फिर किसी के चीखने की आवाज आई। जैन और अफजल दोनों बाहर थे। वो हैरान परेशान सी नफीसा के साथ बाहर आई। सदफ खान उसे देखकर लपक कर उसके पास आई। माला, डरना नहीं बेटा, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम बहुत पढ़ोगी। तुम्हारे माँ बाप ने जो किया उसकी सजा भी हम उन्हें दिलवाएंगे। तुम बयान दो अपना बस। सदफ खान की बेकरारी अरूज पे थी। माला हक्का बक्का इस गैबी मदद को देख रही थी। क्या उसकी आंखें सुन ली गई थी? क्या उसका सबर कामयाब ठहरा था? सदफ खान ने उसे लब बस्ता देखकर सीने से लगाया। जाने कब का वन टूटा था। कौन कौन सी अजियत, बेसरो सामानी चोटें आज बह रही थी। उसका पूरा वजूद बिलक रहा था। वो भी उसके साथ रो रही थी। आफाक और सुहेल की आंखों में नमी और गुस्सा दर आया। इतनी सी बच्ची भी कौन कौन से मसाइब टूट पड़े। मोहल्ले की चंद औरतों से उन्हें हैदराबाद के ज्यादती वाले मामले का भी पता चल चुका था। तुम्हारे बेटे को तो दुकान से उठाएंगे, अभी तुम चलो थाने।
सुहेल अहमद ने जैन के बाप को धरा। नफीसा की तो सिट्टी गुम हो गई थी। यकदम में सारी काया पलट गई थी। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, आप इन लोगों को कुछ ना करें। माला की बात पे सब एक साथ चौंके थे। लेकिन अंकल, आप इनको बोले मुझे पढ़ने दे बस। वो फिर रो रही थी। माला, ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे बेटा, हमारे साथ चलो। सदफ खान उसके पास आई। हाँ हाँ, हम इसको पढ़ाएंगे, आप बस ये मामला रफा दफा करें इंस्पेक्टर साहब। जैन का बाप मौका देखते ही अली की तरह सीधा हुआ। जी जी सदफ बहन, आप इसको पढ़ा दीजिएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे, मगर इसको रहने दें इधर, हमारी बहू इज्जत है इस घर की। नफीसा ने भी होश के नाखून पकड़े। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद वो तीनों फैसले पहुंचे। ठीक है, पर्चा थाने में रहेगा, अगर आगे चलकर इसके साथ कुछ गलत किया तो सबको धर लूंगा। सुहेल अहमद ने उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, मैं इसकी तालीम के सारे मामलात खुद देखूंगी। ये मेरे कॉलेज से पढ़ेगी, इसकी ट्यूशन भी मेरे घर होगी। आप लोग इससे घर के काम भी ज्यादा नहीं लेंगे, आई समझ। सदफ खान ने नफीसा को जितलाया, जो जान छूटने पर शुक्र अदा कर रही थी। अपने बेटे को सब समझा देना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। तुम लोगों पे नजर रखी जाएगी, इसलिए कुछ उल्टा सीधा ना करना, वरना हम नहीं बचाएंगे। आफाक ने भी दामन चाड़ के नशिस्त छोड़ी। माला मुतशक्किर नजरों से इन फरिश्तों को देख रही थी, जो आसमान के बजाय जमीन से ही आए थे। वाकई अल्लाह की लाठी हुई आवाज है। इतने कम वक्त इतना सब कुछ हो जाएगा, उसे अंदाजा न था। दस्तावेजात की फाइल वो अपने सामान में छुपा कर साथ लाई थी। बाकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट सदफ खान ने अपने असर रसूख से हैदराबाद से मंगवा लिए थे। माला के वालिदैन को सारी खबरें नफीसा से मिल रही थी। वो लोग मिलकर सदफ को पूछते, उसका एडमिशन, यूनिफॉर्म, दीगर चीजें, सब कुछ सदफ और उसके शौहर ने अपने दिन किया था। वो उनकी शदीद एहसानमंद थी। परसों से उसकी क्लासेस स्टार्ट थी। उसने आर्ट्स के बेहतरीन सब्जेक्ट्स रखे थे। उसके ख्वाब फिर से वापस आ रहे थे। उसने करवट लेके सोते में आसिम को प्यार किया। जैन उस पर चीख ताड़ के सो चुका था, मगर अब उसे परवाह नहीं थी। वो उसके रास्ते का पता था, मंजिल कुछ और थी। सुबह होते ही उसने आसिम को दूध देकर नफीसा के हवाले किया। वो उसे तेज नजरों से घूरती हुई आसिम को लेके जा चुकी थी। वो जानती थी सब इतना आसान नहीं होगा। ज़हनी तौर पे वो खुद को इन रवैयों के लिए तैयार कर चुकी थी, मगर कुछ भी था, वो उसके जानने वाले थे। वो चाहकर भी सदफ खान के हमरा न जा सकी। उनके घर में बोझ बन के नहीं रह सकती थी। इतनी कम उम्र में वो इस कदर पुख्तगी के साथ सोच रही थी। वक्त वाकई उस्ताद है, सब सिखा देता है। उसने सबका नाश्ता टेबल पर लगाकर अपनी चीजें समेटी और चादर को अपने यूनिफॉर्म पर मजीद फैला दिया। सदफ के घर की गाड़ी बाहर उसकी मुंतजिर थी। आफाक के साथ बिलाल आगे, जबकि सदफ और उनकी बेटी वलिया पीछे उसके लिए जगह बना के बैठे थे। बिलाल और वलिया पुरशौक नजरों से उसकी जानिब देख रहे थे। वो मजीद घबराहट का शिकार हुई। इस तरह की सूरत हाल पहली बार हुई थी। वलिया ने गर्मजोशी से उसका हाथ दबाकर हेलो कहा। वो उससे बड़ी थी, मगर अपने हम उम्रों की तरह बेतकल्लुफ हो रही थी। बिलाल अपनी नजरें सामने जमा चुका था। वो जान चुका था वो कितनी नर्वस हो रही है। उसने गाड़ी का माहौल बदलने के लिए बाप से बातचीत शुरू कर दी, ताकि माला नॉर्मल हो जाए। वलिया को यूनिवर्सिटी छोड़ के उन दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर चुके थे। बिलाल का कॉलेज सदफ के कॉलेज के साथ ही था। वो इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। माँ से अलविदाई कलमात कहकर वो अंदर जा चुका था। माला को देखकर उसे दिल से अफसोस हुआ। वो कहीं से शादीशुदा मालूम ना होती थी। उसने तो कोई और ही खाका ज़हन में बना रखा था, गाउदी टाइप लड़की का। ये तो बहुत नाजुक मासूम सी लड़की थी। इसे हालात के पलटों ने मजीद कमजोर कर दिया था। सदफ खान ने उसे सारा कॉलेज दिखाकर असातिज़ा से मुतारिफ करवाया। सब बहुत मोहब्बत से उसे मिले, मगर वो जानती थी इस मोहब्बत के पीछे कितना तरहम है। वो खामोशी से सारे आंसुओं को पीकर क्लास की जानिब चल दी। उसे पढ़ना था, मुआशरे में अपना मकाम बनाना था, लोगों की आंखों में अपने लिए रश्क देखना था। वो जानती थी उसे किसी तरह सदफ खान के एहसानात चुकाने हैं। उसे आसिम को जहन जैसा मर्द नहीं बनाना। इतनी सी उम्र में उसने अपने आगे के मकासद तय किए, बस अब अमल की बारी थी। नए सिरे से मेहनत की, खुद की तलाश की। जंग लड़नी पड़ती है अपने जोरे बाजू पर। जिंदगी के मैदान में मुआवजे नहीं होते।